Hi guys. So a very important question that is asked to me on a daily basis. Okay, I have a 6 years of experience post qualification. You can follow my channel if you have not followed it. तो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है सबका और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है कि सर दैट आई एम फ्रॉम अ स्मॉल फर्म आई हैव बीन आई डिड माय आर्टिकलशिप इज नॉट दैट ग्रेट आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन will I be able to get into a top 20 CA firm or will I can get in a job in a big four or an MNC? I have multiple attempts also. My age might be my को सो बोलता है कि मेरा एज 28 है, कोई बोलता है मेरा एज 30 है, कोई बोलता है मेरा एज 32 भी है. And I have multiple attempts. This is the question that I got. Okay. So can I get a good job? Okay. First, this is a question. Second is एक क्वेश्चन ये भी आता है. This is a very important question. Like हम लोग छोटा फर्म से निकल के आए हैं, small small city. Okay. And sir, I have seen people LinkedIn, they are from many students are quite smart than us. Okay, they are from Big Four articles. They have done articles in from great firm. They have done industrial training. Some might have ranks. I have nothing. Okay, but I feel that I will be a chartered accountant this time. So, will I have any chance? Now, this is a very important question that people are asking. So, my answer, okay, now this is very important because I get a lot of questions. And to be honest, okay, I'll tell you a very important thing. क्या चीज आपका बेनिफिट है और क्या आपका लॉस है. ठीक है. तो I'll tell you my story. You see, okay, I have not done articleship from great firm. From a small city I come, but I have been able to work in all the big fours. तो LinkedIn में जाके आप देख लीजिएगा. तो this will give you confidence. तो that is thing. It is definitely possible. Easy होगा. Easy तो कुछ भी नहीं होता है, right? Easy कुछ भी नहीं होने वाला है, but definitely possible है. I have seen people that those who have 13 attempts, 14 attempts, married, they have got into KPMG. तो डेफिनेटली पॉसिबल है. आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स है, आपका एज ज्यादा है, समथिंग लाइक दैट. तो आप देख सकते हो, लिंक्डइन जाके एक बार देख लीजिएगा. तो माई आल्सो फर्म वाज नॉट ग्रेट. ओके, इट इज पॉसिबल. इजी तो कुछ भी नहीं होता है, पर पॉसिबल है. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग. तो आपका जो क्वेश्चन है, जब आप कंपैरिजन करने का कोशिश कर रहे हो फ्रॉम अ बिग फोर आर्टिकल और समथिंग लाइक अ टॉप 20 सीए फर्म और समबडी हु हैज अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी, राइट. तो देखिए, एक चीज याद रखिए, nobody is betting at you, right? That's the biggest benefit that you have. Okay. For example, you have 6 attempts. Okay, you have 4 to 5 6 attempts. आपका एज भी ज्यादा है, तो कोई को एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है, राइट. इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है. अगर आप फेल भी हो जाते हो, अगर इन केस यू फेल ऑल्सो इन इंटरव्यूज, सो आपके पास एक्सक्यूज रहेगा कि कॉल ही नहीं आया, राइट. और जस्ट इमेजिन, जिसने बिग फोर से आर्टिकलशिप किया है, या मान के चलिए कोई टॉप 20 से किया है, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, राइट, सेकेंड अटेम्प्ट जो भी है, वो लोग अगर फेल होता है, तो वो लोग को पता है कि वो लोग को जवाब देना पड़ेगा सबको. हाँ, अगर फेल हो गए तो आप बोल सकते हो मेरा कॉल ही शेड्यूल नहीं हुआ, पर वो लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं. ही कैन नॉट से दिस. तो कहीं ना कहीं प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दे आर अंडर मोर प्रेशर देन यू. द फर्स्ट रीजन इज दिस. So always remember that you are under some sort of an advantage. That's the competitive advantage that you are having. Being from a small town, small girl, nobody is betting at you. Please understand, this is a very big advantage that you're having. That you're mentally strong. You have already faced rejections in life, right? आपने वर्ष देख चुका है. You know how to handle the embarrassments. You are mentally strong. This will be very very important in interviews. I'm telling you. The second thing that is inner benefit is that, okay, कि अगर मान के चलिए आप एमएनसी या बिग फोर में काम करता है, तो बिग फोर नोज कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आप लंबा समय तक यहाँ पर काम करोगे. और बिग फोर कहीं भी पता है, अगर वो कोई आर्टिकलशिप अगर बिग फोर या बिग सिक्स से करके आया है, तो वो हमेशा चाहेगा कि उससे भी बढ़िया फर्म में ज्वाइन करे. तो उसका रहने का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू यू. यूर कमिंग फ्रॉम स्मॉल टर्म, आप में ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर होगा. एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर वेल, आई फील. एंड आप में हार्ड वर्क ज्यादा होगा, जुगारूपंती ज्यादा होगा. यू विल बी एबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर एंड एवरीथिंग. मे बी you are much more mature, maybe because I've seen a lot of failures. So that is also the things that is going into your benefit, in your advantage. तो कुछ चीज आपका एडवांटेज भी है,
कुछ चीज आपका नेगेटिव्स भी है। आपको अपना नेगेटिव को समझना पड़ेगा, आपका नेगेटिव क्या है। आपका नेगेटिव ये होगा कि योर आर्टिकल्स माइट नॉट बी दैट ग्रेट, उसको सीखने वो आप सीख सकते हो, राइट। टेक्निकल स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो। टेम्स का डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम, बट आई हैव सीन, ओके, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यू लर्न हाउ टू कोप अप विद दैट, दैट कैन बी डन, एड्रेस्ड। बाकी आपको एक और बेनिफिट है जो बिग फोर वाला को या बिग सिक्स वाला को नहीं मिलता है। अगर आप बिग सिक्स या बिग फोर को आप देखोगे तो उन लोग का आर्टिकलशिप जो एक्सपीरियंस होता है वो एक डोमेन का होता है। बाकी आप बोल सकते हो कि अपना सीवी को अलग अलग डोमेन का बना सकते हो। यू कैन डू दैट कस्टमाइजेशन, आप कर सकते हो सीवी में, यू कैन डू दैट कस्टमाइजेशन। इट्स बेनिफिट दैट यू आर हैविंग। पर इन बिग फोर वो लोग कर नहीं सकते हैं कस्टमाइजेशन। कहीं ना कहीं वो लोग भी कहीं ना कहीं उसमें रहता है। तो याद रखिए, द प्रेशर इज ऑन बोथ द साइड्स। एंड ऑल्सो वन आई विल बी ऑब्जेक्टिव, ओके। जो इंटरव्यू लेता है आपका, whoever is taking your interview, वो कभी भी आपको कंपेयर नहीं कर रहा है कोई बिग फोर आर्टिकल या बिग फोर का जो भी है। वो आपको जो कंपैरिजन करेगा वो आपका पास्ट परफॉर्मेंस से आपका देखेगा कि हाउ यू परफॉर्म फ्रॉम माई पास्ट और फ्रॉम योर कैटेगरी ऑफ peers हाउ यू आर परफॉर्मिंग। So I think so, definitely possible है, and there is no reason of comparison. You just need to make sure that you are performing well and just note down कि कहाँ पर आप एरियाज को improve कर सकते हो, टेक्निकल वाइज, कम्युनिकेशन स्किल वाइज, मे बी कम इंग्लिश वाइज जो भी हो सकता है। तो दैट एरिया यू नीड टू इम्प्रूव। डेफिनेटली पॉसिबल है। आप देख सकते हो कि बहुत लोग छोटा शहर से आता है एंड दे हैव डन वेल। इसके अलावा और भी कोई डाउट होगा, प्लीज फॉलो माय चैनल। एंड आई थिंक इफ द रिजल्ट, आई थिंक जब हम वीडियो बना रहा होगा तो रिजल्ट इज क्वाइट नियर। तो प्लीज ऑल द बेस्ट फॉर योर इन रिजल्ट्स ऑल्सो वी आर गिविंग एग्जाम्स, डोंट टेक टेंशन एंड फॉलो आवर कंटेंट इन यूट्यूब एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी, यू कैन फॉलो माई वेबसाइट। सो टेंशन वाला बात नहीं है। इफ यू हैव डन फ्रॉम अ स्मॉल फर्म, I'm telling you, every person is coming multiple attempts. This guy has 8 attempts. He got job in IOCL. He has attempts. He got job in Dubai. So everybody has their attempts. So no need to worry on attempts. I guess attempts does not really। और आपको बस ये improve करना है कि you have to improve yourself। जो भी areas आपको लग रहा है आपका weakness है, you need to improve yourself as much as possible। कहाँ पर मैं आपको मौका मिल सकता है, बी प्रैक्टिकल, वर्क वेरी हार्ड, दैट्स वुड बी द मेन थिंग, ओके। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी कंप्लेसेंट, डेफिनेटली आपको इम्प्रूव, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पर होप तो है। जैसे आप अगर आप इम्प्रूव करोगे अपने आप को तो डेफिनेटली होप है एंड यू कैन डू वेरी वेल, ओके। तो मेनी एंड हमेशा ड्रीम बड़ा रखना चाहिए। तो ड्रीम हमेशा बड़ा रखना चाहिए। वो जन छोटा फर्म से आता है और बोलता है कैन आई गेट इनटू टॉप 20 सीए फर्म, क्यों? आप बिग फोर में क्यों नहीं टारगेट करोगे? आप एमएनसी में क्यों नहीं टारगेट करोगे? व्हाई यू नॉट टारगेटिंग फॉर फॉरेन कंट्रीज, राइट? तो आपका हमेशा सोच बड़ा होना चाहिए, राइट। आप वी शुड एटलीस्ट थिंक बिग, राइट। अगर आप सोचोगे बड़ा तो कुछ ना कुछ तो एम कर ही लोगे, है ना। तो वो भी एक चीज रहता है। तो ऑलवेज थिंक बिग एंड डू हार्ड वर्क। एंड इफ यू आर डूइंग रियली हार्ड वर्क, आई फील ऑलवेज, आई फील those who persons who are really who doing hard work, they think big. I hope God always helps them in some way or the other to send some person in the right time to help them. I hope this video will be useful for you, and take care and all the best for your result who are waiting for result.